Solve more about subspaces. 3.4. Network products. Yes. 3.4 article more about subspaces. More about subspaces. So more about subspaces is if you have two subspaces, suppose U and W, then U and W, they are the subspaces of a vector space V. Then what about their union and intersection? So this union, then if U and W and they are subspaces, you know, U intersection W is always non-empty because U is non-empty, W is non-empty. At least five should, at least identity should be there. So U intersection W, it is always non-empty. Now at least it will be having identity. अगर ये सब स्पेस है तो इसके अंदर क्या होगा, कम से कम आइडेंटिटी तो हो गई, identity because it's a subspace, right? Because each contains the additive identity. You can say 0. 0 of. So in general, you can say, so it is not only for two subspaces. In general, you can say if you have U1, U2, and so on, UN subspaces of V, it is a subspaces sign, not subset. Subspaces of V, then subspaces of V, then U1 intersection U2 intersection UN. So the intersection is again a subspace. Subspace of V. इसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं. कोई एलिमेंट लेंगे हम, प्रूफ आप इसे शो भी कर सकते हो इजी. जैसे यहाँ पर शो करना है, so you will show that because U and W subspaces, you will take two elements. इसे अगर हमें शो करना है, 2 वाले को शो करना है सपोज आई टेक, तो क्या शो करना होगा, you will take any two elements, let UV belongs to U intersection W, and you want to show this intersection is a subspace. So how you will show, you have to show sum is also belonging to this ना, ये तो शो करना होगा हमें, बताइए. यस सर. तो सम शो कर सकते हैं आपका. देखिए अब U अगर if UV belongs to intersection W, इसका मतलब क्या हो गया, UV belongs to U and UV belongs to W. अब U is already a subspace, so this implies that U plus V belongs to U and U plus V belongs to W because U and W are the subspaces. So if some element belonging to both the element, both the sets, this implies that U plus V belonging to U intersection. Similarly, alpha U belonging to U intersection W. So intersection is always a subspace. But what about union? यूनियन के बारे में कुछ कह सकते हैं.
U union W. No, sir. We are not sure, है ना? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज आपका U मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस को आप कहते हैं, अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस को R2, B आई एम टेकिंग R2, B इज योर होल R2, या V2 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो V2 कैसा होता है आपका सेट यूनिट, ऑल x, y such that x y belongs to here, है ना? अब अगर मैंने U ले लिया एक्स एक्सिस को आप कैसे लिखेंगे, x पावर 0, है ना? ये एक्स एक्सिस सब स्पेस है क्या V2 का? Yes, sir. सब स्पेस है क्योंकि इसके अंदर Yes, जीरो sir. भी है, बिकॉज इट हैज जीरो एंड इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू इट, so it is a subspaces, the subspace of. Similarly, B I am, suppose W I am taking, W या V ले ले, कुछ भी ले ले, Y axis, Y axis will be what, 0, this is also subspace of V. That means you have taking this whole R2, this is your V2, so this is your x axis. Suppose this is I am taking U, ये आपका U है, और ये this is your y axis है, this is I am taking W. अब इसका जरा यूनियन बताओ, व्हाट इज यू यूनियन W? इसका यूनियन क्या आएगा? X-axis and Y-axis. ये एक्सिस आ जाएंगी, है ना? यूनियन W आएगा एक्स एक्सिस यूनियन W एक्सिस, क्या आ जाएगी? यही आ जाएंगे बस, ये बीच का पोर्शन नहीं आएगा, ध्यान रख, यूनियन में ये सब नहीं आया ना, यूनियन में क्या आएगा, दिस होल एक्स एक्सिस, दिस होल वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस. अब you can take some point, suppose I am taking 1, 0 and 0, 1. 1, 0 belonging to union W, 0, 1 belonging to union W. Got out there some, is 1, 1. 1, 1 पॉइंट कहाँ आएगा, ये आएगा, ये कहाँ है, बिलोंग कर रहा है, No, sir. नो, है ना? नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ बीच में आया ना पॉइंट, यूनियन में यू आर नॉट हैविंग द होल V2, you have only axis, okay, so this is not belonging to union, so this means union need not be a subspace, need not be a subspace, हो भी सकता है, हम एग्जांपल बना सकते हैं, but not in general, but intersection is always a subspace. यहाँ पर भी अगर हम intersection लेते हैं, what is intersection here, इसी केस में क्या आएगा, origin. Zero, zero. है ना, ये आ जाएगा, देखिए आप, intersection is always a subspace but union need not be. So but one theorem states that if I will take the span of this, अगर मैं span ले लूं, U union W span, then span is a subspace. In fact, we have proved that span set is always a subspace. So this is a subspace of, अगर मैं span करूँगा, तो this is the subspace containing U and W. ये span set तो हमेशा subspace होगा ही, आप span set पे क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर आपके पास, अगर कोई एलिमेंट B belonging to U and W क्या होगा, अगर V belonging to U and W है, it means B can be written as
linear combination of vectors of u and w, alpha 1, u1 and so on, alpha n, un plus some beta 1, w1 and so on, some beta m w1, इस टाइप के वेक्टर। स्पैन इज ऑलवेज अ सबस्पेस। जहाँ स्पैन करेंगे तो क्या आएगा स्पैन, एक्चुअली अगर मैं इस एग्जांपल में लूँ, यहाँ पर स्पैन क्या जाएगा आपका, बताइए। अभी यू यूनिट डब्ल्यू आपका सिर्फ ये था, अगर आप इसका स्पैन कर दें तो व्हाट अबाउट स्पैन, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन पे जाएंगे तो क्या जाएगा, होल R2 plane. होल V2 प्लेन है ना। तो अगर आप स्पैन कर देंगे इसको तो ये आपका होल V2 प्लेन आ जाएगा और ये आपका सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है सब स्पेस। तो यू यूनिट डब्ल्यू नीड नॉट बी अ सब स्पेस बट इट्स स्पैन इज ऑलवेज अ सब स्पेस। और इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के होंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ u एंड वेक्टर्स ऑफ w, क्योंकि इसमें दोनों वेक्टर्स हैं इसमें ना, यूनियन इस टाइप के वेक्टर्स आते हैं। तो एक डेफिनेशन है एडिशन ऑफ टू सेट्स, एडिशन। अब देखेंगे जो यूनियन में आ रहे हैं वो एडिशन की सेट में आएंगे। एडिशन कैसे होता है, एडिशन ऑफ टू सेट्स करा होगा। इफ यू हैव टू sets suppose a and b are subsets, suppose a and b, they are the subsets of a vector space b, या subsets है ये। so if you want to add two a plus b, तो a plus b में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, u plus b is such that u belongs to a, b belongs to b। this is the definition of addition of two sets। अगर मैं कोई एक सेट ले लूं, फॉर एग्जांपल a में I am taking 1 0 1 1, suppose b have 1 1 1 2 2 3, तो a प्लस b में आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, u प्लस b। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा इसमें, तो u है यहाँ पर 1 0 प्लस 1 1 है ना, और 1 0 प्लस 1 2 1 0 प्लस 2 3। सिमिलरली 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 2, पहले फर्स्ट एलिमेंट लेके सारे ऐड कर दिए, अब सेकंड प्लस देन 1 1 प्लस 2 कॉमा, ठीक है ये एलिमेंट्स। तो क्या एलिमेंट्स होगा इसके, ऐड कर लीजिए कंपोनेंट वाइज। तो 1 कॉमा 1 2 कॉमा 1, दिस इज 1 प्लस 1 2 2 कॉमा 2 1 प्लस 2 3 कॉमा 3 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 एंड इस तरीके से एलिमेंट्स हो जाए, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इट इज व्हाट, इट इज सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ ए बी। तो ये इट इज कमिंग, तो ये बताइए ये स्पैन ऑफ यू ए इसके इक्वल नहीं लग रहा क्या, बताइए। तो वी हैव वन रिजल्ट, थ्योरम 3.4, पेज नंबर 79। if u and w are two subspaces of a vector space V, then u plus w, the sum of two sets, क्योंकि सब स्पेस है तो सेट्स तो है ही, then u plus w is a subspace of V
and u plus w is equal to span of u union w। ये एक रिजल्ट। अगर u एंड w टू सब स्पेस, यहाँ पे देखो मैंने सब स्पेस नहीं दिया था यार, मैंने सेट्स दिए थे। ये सब स्पेस नहीं है, इसमें आइडेंटिटी नहीं है कहीं पर, है ना। ये तो सिंपल सेट्स थे। ये तो मैंने दिखाया हाउ टू ऐड, ये इस तरीके से ऐड करेंगे। रिजल्ट स्टेज कि अगर u और w सब स्पेस हो जाए, जैसे अभी आपके पास ये था सब स्पेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसका जो सम आएगा u प्लस w, ये भी सब स्पेस होगा और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, u यूनियन w। क्या आपने भी देखा u प्लस w में क्या एलिमेंट्स होंगे, ये ऐड ही तो कर रहे हैं आप, लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है सारे ये, है ना। इन्हें हमने ऐड किया है, ऐड का मतलब क्या हुआ, यू आर टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इफ दे आर सब स्पेसेस तो यू विल बी टेकिंग एलिमेंट्स लाइक दिस। जाहिर है सब स्पेस होंगे तो फाइनाइट तो होंगे ही वो, इसके अंदर एलिमेंट भी फाइनाइट, ये जो है अगर सब स्पेस है तो इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट लिखना, या तो आइडेंटिटी होगा खाली, सिर्फ आइडेंटिटी हो, या तो जो ट्रिवियल है, या इट विल बी हैविंग इनफाइनाइट। जैसे पूरी एक्स एक्सिस है आपकी, होल एक्स एक्सिस और होल वाई एक्सिस, तो इसका अगर आप सम करेंगे तो क्या आएगा, यू इसका सम देखो, यू प्लस डब्ल्यू क्या आएगा आपके पास, बताओ। इसको अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा जीरो प्लस जीरो कॉमा वाई, यही तो आ प्लेन। जाएगा। नहीं, सम सम क्या बताया मैंने, u प्लस बी, तो एक्स कॉमा जीरो प्लस, यही तो आ जाएगा पूरा। ये किसके इक्वल था, ये यूनिट स्पैन के इक्वल है ना। ये हमें प्रूव करना है कि अगर सब स्पेसेस है, ध्यान रखना सब स्पेसेस, तो सब इक्वल टू होगा दिस, और ये सब स्पेस बन जाएगा। तो सिंपल सी थ्योरम है, प्रूफ देखे। तो वेल यू वांट टू शो टू things equal, तो I always told you if A subset of B, B subset of A implies that A is equal to, है ना, ये हमें शो करना होता है हमेशा। सो क्लियरली U plus W is a subset of U union W। ये तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स है लीनियर कॉम्बिनेशन, और इसके अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, ये तो इसका हमेशा सबसेट होगा ही होगा। बताइए, ये तो ऑब्वियस है। लेफ्ट हैंड साइड क्यों भाई, U plus W में क्या होंगे, U plus W will be having this type of combination, और स्पैन में क्या है, all combination, so this is always a subset of U and W because each Yes, sir. vector, है ना, each vector of U plus W is a linear combination of U union W। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का तो इसके स्पैन में जाए, है ना। हमें क्या प्रूव करना है, कन्वर्स, और ए सबसेट ऑफ बी हो गया, बी सबसेट ऑफ बी। सो नाउ फॉर U union W is a subset of U plus W, ये और शो करते हैं। ये तो आपका हो गया वन। आई एम एज्यूमिंग, सपोज क्या शो करना होता है, आई विल टेक सम एलिमेंट हियर, लेट V belongs to, ये तो बताया था, और क्या शो कर देंगे हम, V belongs to U plus W। ओके, अब अगर V belongs to span of U union W है तो क्या होगा, V किस फॉर्म का होगा, V will be equal to how much, sum U plus W, ये लिख सकता हूँ ना, V will be U plus W for some U belongs to U
एंड W बिलोंग्स टू W। होगा नहीं होगा? तो अगर इसके स्पैन में है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा सम वेक्टर्स ऑफ U एंड सम वेक्टर्स ऑफ W। तो अगर U का कोई सम वेक्टर मान लिया, हमने U ले लिया है, इसमें कोई W ले लिया, तो आई कैन राइट V इज इक्वल टू U प्लस W, है ना? इस टाइप का ही तो आएगा ये। मैं वो अल्फाज में लिखेंगे आप, अगर मैं अल्फा को अल्फा बीटा में रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ तो V U प्लस W टाइप का ही तो आएगा। U प्लस W क्या था? ये है U प्लस W। U प्लस V का मतलब क्या है? सारे कॉम्बिनेशन इस टाइप जितने भी एलिमेंट्स। V अगर स्पैन में आएगा तो इस ये तो एलिमेंट होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर U प्लस W है, V बिलोंग्स टू सेट ऑफ U प्लस W। ये एलिमेंट्स थे, ये सेट है। सो दिस implies that a U union W span is subset of U plus W. That means 1 and 2 implies so this you can see that this is, and this is a subspace also. Two things is subspace. Subspace हो गई because span is always a subspace, so it is equal to this, so this is a subspace. Span set is always a subspace. तो वो जो आपका x एक्सिस y एक्सिस एग्जांपल है, वहां से आप इसे चेक कर सकते हैं। इस ये प्रॉब्लम सेट है 3.4। फर्स्ट प्रॉब्लम सिंपल कर सकते हैं आप। प्रॉब्लम है if u1 u2 un, let u1 u2 un be n subspaces of V, then prove that u1 intersection u2 and so on intersection un। इसको अगर मैं क्लब करके लिखूं तो I can write I is equal to 1 to n u1, then prove that this is also a subspace of V। ठीक है, ये सबस्पेस है, हाँ है ना? सो दिस इज आल्सो सबस्पेस। तो ऐसे हमने 2 के लिए लिया था, आप इसको n के लिए लिख देंगे। लेट u1 u2 un बिलोंगिंग टू दिस, तो सब में बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन। ऐसे आप लैप करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम है, नॉट टफ प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, इफ u and w are subspaces of a vector space V, prove that, then two parts are there. Prove that U intersection W is a subspace of W, कि W के लिए कर रहा है। अगर U W सबस्पेस है तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो W का सबस्पेस होगा, या U का भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और B पार्ट क्या है? U यूनियन W is a subspace of V if and only if, यूनियन sorry union, union U union W is a subspace of V if and only if U subset of W और W subset of V। ये दो रिजल्ट, यानी कि U इंटरसेक्शन W है, मालूम है V का सबस्पेस तो होता है। मोर ओवर दे आर सेइंग U intersection W is a subspace of W।
अगर आपके पास एक U है सपोज, और ये W है सपोज, और ये आपके पूरे V के अंदर है, अगर मैं डायग्राम से समझूं, सपोज करो ये V है, ये U है, ये W, तो इंटरसेक्शन ये आएगा आपके पास। तो जो इंटरसेक्शन है वो W का भी सब स्पेस होगा, बल्कि U का भी सब स्पेस। अगर W का कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है U के लिए भी true है ना। और क्या कह रहे हैं कि U यूनियन W सब स्पेस कब होगा, इफ एंड ओनली इफ U सबसेट ऑफ W और W, यानी कि अगर ये U है, सबसेट का मतलब क्या हुआ, ये है, ये V है, सपोज इट इज U, इट इज W, इट इज V, ये भी ऑब्वियस है। अब अगर U सबसेट ऑफ W, W सबसेट ऑफ U है यहाँ पे, मान लो W सबसेट ऑफ U है, तो U यूनियन W कितना आएगा बताइए, बता सकता है? U. यू U आएगा। अगर W सबसेट ऑफ U है तो U यूनियन W U आएगा। और U क्या है, ये तो सब स्पेस है ना, और U तो सब यस स्पेस है। ऐसे ही अगर U अंतर हो गया तो W आ जाएगा। तो ये सिंपल से ऑब्जर्वेशन है, अगर आप देखें प्रूव कर सकते हैं हमसे मैथमेटिक। फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे सब स्पेस आ रहा है। वैसे तो आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी वगैरह सब आएगा। चलो प्रूव करते हैं इसका ए पार्ट। तो अगर वेन डायग्राम से आप प्लॉट करेंगे आपको इजीली दिख जाएगा कि कैसे ये यूनियन हो रहा है। यूनियन में ये आ रहा है, विच इज सब स्पेस। इंटरसेक्शन में ये आ रहा है, ये सब स्पेस है V का और इसलिए W का। सो ए में हमने माना लेट, ए तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस है, ए पार्ट तो हम कर सकते हैं, बी पार्ट करते हैं इसका। ए पार्ट में अगर आपको करना यू इंटरसेक्शन W इज अ सब स्पेस ऑफ W, क्या करें इसमें बताइए। दो एलिमेंट ले ले, W दो इसके एलिमेंट अंदर है ना, वो W V करेंगे के ऐड। अंदर है। हाँ, ये पार्ट आप कर सकते हैं लेट आई एम टेकिंग U कॉमा W belongs to U intersection W. So this implies that UW belongs to U and U comma W belongs to W। अब इसका सम भी बिलोंग करेगा, क्योंकि U ऑलरेडी है सब स्पेस, W ऑलरेडी है सब स्पेस। तो U प्लस W बिलोंगिंग टू W। अच्छा W जो है वो सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस उसका, तो यहाँ से ये आया कि U प्लस W बिलोंगिंग टू दिस एंड सिमिलरली अल्फा U बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन W। तो U intersection W is a subspace of, यहाँ सबस्पेस ऑफ V आएगा है ना, एंड हेंस क्योंकि U इंटरसेक्शन W में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट्स किसके हैं, V के भी हैं और W के भी, है ना। इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब, वो एलिमेंट्स किसके होंगे, सारे W के होंगे और U के होंगे, V के तो है ना। तो अगर वो V के U के एलिमेंट सॉरी V के एलिमेंट्स के ट्रू है तो W के एलिमेंट्स के ट्रू होगा, एंड हेंस a subspace of W as W are coming from the intersection। तो आप कोई भी एलिमेंट अगर लेंगे और जब वो इंटरसेक्शन में करेंगे तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। तो ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, सबसेट बन, क्यों, बिकॉज U इंटरसेक्शन W क्या है, इज अ सबसेट ऑफ W। सबसेट होता है ना ये, और ये सबसेट है V का, तो अगर वो V के लिए ट्रू है तो W के लिए भी ट्रू है बाय दिस लॉजिक सबसेट। यहाँ सब स्पेस ऑफ बी आया इस, और सब स्पेस W, सब स्पेस के लिए आपको बस शो करना होता है कि सबसेट होना चाहिए, तो सबसेट हो गया, सब स्पेस तो हो गई।
बी पार्ट, बी पार्ट आपको प्रूव करना है बोथ साइडेड। मैंने बताया था इफ एंड ओनली इफ का मतलब है बोथ साइडेड ट्रू। इफ लेफ्ट हैंड साइड ट्रू देन राइट इज ट्रू, राइट इज ट्रू देन लेफ्ट इज ट्रू। चलो तो पहले हम लेके चलते हैं, सपोज आपकी ये चीज ट्रू है, लेट यू सबसेट ऑफ डब्ल्यू चाहे इक्वलिटी भी लगा सकते हैं आप, प्रॉपर भी हो सकता है, कंटेनमेंट भी हो सकता है, और डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ यू। अब ये लेके चलता है, ठीक है, लेट ये वाली बात कि या तो यू डब्ल्यू में कंटेंट कर रहा है या डब्ल्यू कोई ना कोई एक दूसरे को कंटेंट करे। तो इससे क्या हुआ, अगर यू सबसेट ऑफ डब्ल्यू होगा देन व्हाट अबाउट यू यूनियन डब्ल्यू, जो बड़ा सेट है वो आ जाएगा, है ना, डब्ल्यू हो जाएगा। और अगर डब्ल्यू सबसेट है तो यू यूनियन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, यू के, है ना, एंड डब्ल्यू इज ऑलरेडी अ सब स्पेस, यू ऑलरेडी सब स्पेस, ये जो अभी Yes. लॉजिक यहाँ बताया था ना। सो दिस इंप्लाइज दैट यू यूनियन डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ, क्योंकि डब्ल्यू भी सब स्पेस है, यू भी सब स्पेस है, तो या तो ये इसके इक्वल हो या इसके इक्वल, तो वन साइड इज ट्रू। कन्वर्सली, कन्वर्सली में लेट I will take the left hand side. Let U union W is a subspace. Let U union W be a subspace of B. तो हमें प्रूफ करना है ये ट्रू है, इसे हम प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन से, यानी कि आई विल टेक ऑन कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ इजी है इसका। लेट U is not a subset of W and W is not a subspace of। देखो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या लेंगे, U इज नॉट और का एंड हो जाएगा, जब कॉन्ट्राडिक्शन आप लेंगे तो और का कॉन्ट्रारी एंड हो जाएगा कि U इसका भी सबसेट W का नहीं है, और नीदर U सबसेट ऑफ W नॉर W सबसेट ऑफ U, यानी हमने कॉन्ट्राडिक्शन दिया, एंड आई विल प्रूव कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हेंस इट मस्ट बी अ सबसेट। इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच। ये आपको शुरू बताया था कि जो प्रूफ करना है उसका उल्टा कॉन्ट्राडिक्टरी सपोज करते हैं। तो व्हाट विल हैपन, अब इससे टू थिंग्स हुई। पहले इफ आई एम टेकिंग सिंस U इज नॉट अ सबसेट ऑफ W, इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट U बिलोंग्स टू U सच दैट U डज नॉट बिलोंग, इसका मतलब ये तो हुआ, है ना, U W का सबसेट नहीं है, यानी कि U में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो W में नहीं है ना, एंड इफ W इज नॉट सबसेट ऑफ U, तो ऐसे ही W के लिए ट्रू होगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट W बिलोंग्स टू W such that W does not belongs to, है ना, ये प्रूफ है। बट ये हमें पता है कि U जो है वो बिलोंग करेगा U यूनियन W, है ना, U W में तो नहीं है, लेकिन अगर मैं यूनियन ले लूंगा तब तो इसमें आएगा ही ना, क्योंकि यूनियन में क्या आते हैं, ऑल द एलिमेंट्स, एंड आल्सो W बिलोंग्स टू U यूनियन W। ये बात तो सही है ना, W U में नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका यूनियन ले लूंगा तब तो आ जाएगा, बताइए, Yes. है ना, क्योंकि यूनियन में क्या होते हैं सारे, तो डब्ल्यू यू में नहीं आएगा, लेकिन जब यूनियन करेंगे तो यूनियन में आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में यू भी आएगा, तो डब्ल्यू बिलोंग्स टू यू यूनियन डब्ल्यू। अच्छा, तो कैन आई से यू प्लस डब्ल्यू बिलोंगिंग टू यू यूनियन डब्ल्यू, ये हमारा सपोजिशन था। देखो क्या सपोज किया हमने, ये तो मान के चले लेट यू यूनियन डब्ल्यू बी अ सब स्पेस, तो अगर ये सब स्पेस है तो दो एलिमेंट बिलोंग करेंगे तो उनका सब भी तो बिलोंग करेगा, है ना, ये हमने सपोज किया है, अगर सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस भी होगा।
तो अगर u belonging to दिस है, w belonging to दिस है, इसका मतलब u plus w belonging to u यूनियन w। अगर कोई यूनियन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होता है, u plus w belongs to u और u plus w belongs to w। बताइए यहाँ तक क्लियर है ना। नाउ सिंस u इज अ सब स्पेस, तो u plus w belongs to u and also minus u belongs to u, माइनस u भी तो बिलोंग करेगा, क्यों, सिंस u इज अ सब स्पेस, है ना। ये मैंने अलग दे दिया कि माइनस u बिलोंगिंग टू u। देखो बताओ, अगर u सब स्पेस है तो दो एलिमेंट्स अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उनका सम भी बिलोंग करेगा u के अंदर, सम। दिस इंप्लाइज दैट u plus w plus minus u belonging to u। अब u से u कैंसिल आउट, तो दिस इंप्लाइज दैट w belongs to u। लेकिन हमने क्या शो ऊपर लिया था, w which is a contradiction, which is a contradiction। Similarly, if I am taking u plus w belongs to w and minus w belongs to w, because w is a subspace, this implies that u plus w plus minus w belongs to w, this implies